Hello everyone, this is here Bandhani Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. In last session we have discussed question 1, 2, 3 of exercise 1.4 and in today's session we are going to discuss next further questions of the same exercise 1.4. Okay, so let's start it. So question number 4 is write 5 pairs of integers a comma b such that a is divided by b equals to -3. One such pair is 6 comma -2. Because 6 is divided by 2, then you will get the -3. Okay. So in this question you have to make out 5 pairs of 2 integers such that their division will give the answer -3. Okay. So you have to make pair like this a comma b. Okay, such that if a is divided by b, this will give answer as -3. Okay, and one example of this pair, so that the result is -3 you have given here, that is 6 comma -2. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 पेयर्स आपको इंटीजर्स के ऐसे बनाने हैं जिनका डिवीज़न क्या है -3. ओके, एक पेयर आपको दे रखा है, देखिए 6 कॉमा -2. इसका मतलब 6 को अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट 3, 2 3 जा 6, so 3 will come here. Okay, and numerator is positive and denominator is negative. Okay, so if in between these two, if one is negative, the answer will always go with negative integer. Okay, now like this we have to make 5 integers pair. Okay, so let's take first 3 comma -1. Now see, 3 is divided by -1. 1 3 ja 3, so the result will be 3, and 1 is negative integer, so answer will be -3. Okay, now second pair, if I take here 2, okay, if I take here 2 and 3 times of 2 what, 6, so I will take here, and there is minus sign, so I am taking -6. Okay, so second pair is -6 comma 2. Now -6 divided by 2, 2 3 ja 6, and there is negative integer, so answer will come as -3. Okay, next pair 5 3 ja 15. Okay, so in numerator you can take 15. Okay, and denominator will be 5. Okay, now divide -15 upon 5, 5 3 ja 15, so answer will be 3 and this negative sign. Okay, दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में. ओके, सो फोर्थ पेयर लेट्स टेक -18. -18 is what, 3 times of 6, so 6 here. Okay, now see here, -18 divided by 6, 6 3 ja 18. Okay, and there will be minus sign. Okay, next fifth pair, 9 3 ja 27, so your pair will be 27 -9. Okay, नेगेटिव साइन आंसर में आ रहा है तो पेयर में आप कोई भी एक इंटीजर नेगेटिव ले लीजिए. ओके, और यहाँ पर आंसर क्या है, 3 है. इसका मतलब आपको पेयर इस तरीके से लेना है कि एक दूसरे का मीन्स फर्स्ट इंटीजर विल बी द 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड इंटीजर. ओके, फर्स्ट इंटीजर इज द 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड इंटीजर. सी हियर, 3 टाइम्स ऑफ 1 इज 3, 3 टाइम्स ऑफ 2 इज 6, 3 times of 5 15, 3 times of 6 18, 3 times of 9 27. Okay,
So these all are the pair of integers such that their division will give result -3. Okay, now let's come to the question number 5. Okay, the question is the temperature at 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या दे रखा है? एट 12 नून मीन्स दिन के 12 बजे कितना टेम्परेचर दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0. इसका मतलब टेम्परेचर इज अबव 0 मीन्स टेम्परेचर विल बी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट. अब यही टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. मीन्स हर एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. और कब तक डिक्रीज हो रहा है? अंटिल मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे तक. ओके, दिन के 12 बजे से टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक? रात के 12 बजे तक डिक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? टाइम बताना है. कब का? जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 हो जाए. मीन्स 0 के नीचे चला जाए टेम्परेचर. मतलब बिलो 0 मीन्स टेम्परेचर विल बी हेयर -8 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो वो टाइमिंग आपको बतानी है जहाँ पर टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट. और रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन so that it will be very easy to understand here. Okay, now see, the temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above 0. Above 0 means you have to take right hand side, means 1 2 3 plus positive side. Okay, so above 0 means 10 degree Celsius. So 10 degree Celsius this temperature. Okay, 10 degrees Celsius. Okay, now see, 10 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर है. ठीक है, अब ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है. अब 1 आवर में कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 2 डिग्री. ओके, डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कम हो रहा है, मीन्स माइनस हो रहा है. तो 1 आवर में कितना? 2 डिग्री. इसका मतलब 10 से 9, 9 से 8, 1 आवर में कितना? 2 डिग्री. मीन्स 10 - 2 दैट विल बी 8 डिग्री. ओके, 8 के बाद क्या होगा? 6 डिग्री. 6 के बाद 4 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 0 डिग्री, देन -2 डिग्री, देन -4 डिग्री, देन -6 डिग्री, देन -8 डिग्री. ओके, और क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना था कि किस टाइम पर टेम्परेचर आपका 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 होगा. 8 डिग्री सेल्सियस मीन्स बिलो 0. So 1 2 3 4 5 6 7 8. This 8 is below 0. That is why we are denoting it by minus sign. Okay. So यहाँ तक हमें पहुँचना है. अब देखिए, ये क्या था आपका? 1 आवर. 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ तो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया. सेकेंड आवर में 6, थर्ड आवर में 4, फोर्थ आवर में 2 डिग्री. ओके, एंड फिफ्थ आवर में 0 डिग्री, सिक्स्थ आवर में -2 डिग्री, सेवन्थ आवर में -4 डिग्री, एंड 8 आवर में -6 डिग्री, एंड 9 आवर में -8 डिग्री सेल्सियस. ओके, इट मीन्स दिस टेम्परेचर वॉज एट 12 नून. ओके, दिन के 12 बजे ये टेम्परेचर था. ठीक है, अब देखिए, दिन के 12 के बाद क्या आता है? दिन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब ये क्या होगा? 9 ऑफ नाइट. राइट, दिस इज 9 o'clock ऑफ नाइट. ओके, so we will write it as initial temperature. Initial temperature was
हाउ मच 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब आप 0 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वाई वी आर टेकिंग हियर पॉजिटिव साइन. ओके, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 means -8 degree Celsius would be at 9 o'clock of night. Okay, or we can write it as 9 p.m. Okay, so the temperature 8 degree Celsius below 0 means -8 degree Celsius would be at 9 p.m. okay, or 9 o'clock of night. Now second part is what would be the temperature at midnight. Midnight means रात के 12 बजे. ओके, तो रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा. तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 9 o'clock ऑफ नाइट तक पहुँचे थे. अब पहुँचना कहाँ है हमें, 12 o'clock ओके ऑफ मिड नाइट. सो देखिए 9 के बाद 10 ओके 11 देन 12, 12 बजे रात के हमें पहुँचना है. तो 9 बजे कितना टेम्परेचर था, -8 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस. 11 बजे -12 डिग्री सेल्सियस एंड 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो नंबर लाइन की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट midnight. Okay, means at 12 AM. Okay, so the temperature will be -14 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब इसी पार्ट को हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं. देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. इनिशियल टेम्परेचर was 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड चेंज इन टेम्परेचर, देखिए दिन के 12 बजे से टेम्परेचर डिक्रीज़ करना स्टार्ट हुआ था और रात के 12 बजे तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ओके, तो मतलब कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए. सो द चेंज इन टेम्परेचर, सो हाउ मच चेंज हैज़ बीन इन 12 आवर्स, दैट वी विल कैलकुलेट. सो चेंज इन टेम्परेचर after 12 hours will be, in 1 hour the temperature is decreasing -2 degree Celsius. Okay, so after 12 hours means -2 into 12, that will be -24 degree Celsius. The temperature has changed, that is started from 10 degree Celsius and in 12 hours this has changed to -24 degree Celsius. Now we have to calculate what at 12 midnight, we have to calculate this temperature. So at midnight the temperature will be initial temperature was 10 degree Celsius. Okay, and plus, and after 12 hours the change in temperature is -24 degree Celsius. Okay, अब यहाँ पर देखिए, अगर सपोज ये जो डिक्रीमेंट है अगर हम साइन के साथ शो नहीं करते, ओके, साइन के साथ ऑलरेडी हमने क्या किया है, शो कर दिया कि मतलब ये हमने डिक्रीज़ दिखा दिया कि इतना चेंज हुआ है टेम्परेचर में. ओके, डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं. तो जब भी हम फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे एट आफ्टर पर्टिकुलर आर, ओके, फाइनल टेम्परेचर तो हम क्या लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर, और चेंज कितना हुआ है टेम्परेचर में, दैट विल बी एडेड हियर. ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन द चेंज इन
विद नेगेटिव साइन, ओके। नेगेटिव साइन जो हम डिक्रीज़ का शो कर रहे हैं वो हमने पहले ही ले लिया है। नहीं, अगर नहीं लेते तो हम क्या करते, 10 में से 24 को माइनस कर देते, ओके, बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर इज़ नॉट जीरो, ओके, इज़ नॉट जीरो हियर, द इनिशियल टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, सो वी हैव टू डिक्रीज दिस चेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो इन बोथ वे वी कैन डू 10 plus minus minus 24. Now see, 10 minus 24 is 14 and the sign will go with greater number, that is 24. So at midnight means at 12 of night the temperature would be minus 14 degree Celsius. Okay, इसी चीज़ को हमने नंबर लाइन से पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। आप अगर आपको कैलकुलेट करके शो करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। So this was question number 5. Now come to the question number 6. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answers and no marks for not attempting any answer. Okay? तो एक class test है जिसमें for every correct answer 3 marks are given, okay, and for every incorrect answer -2 marks are given, okay, and 0 marks for not attempting the question, okay. Now first part is Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि राधिका ने कितना स्कोर किया, मीन्स टोटल स्कोर आफ्टर adding correct marks for correct answers and marks for incorrect answers. So final score is 20, okay, and she has got 12 correct answers. उसने कितने correct answers किए हैं, 12 correct answers किए हैं। Now you are asked here how many questions she has attempted. उसने कितने incorrect question attempt किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ है। marks given for correct answer, 1 correct answer is +3। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, 3, and marks given for 1 इनकरेक्ट आंसर मीन्स रॉन्ग आंसर के लिए माइनस मार्किंग, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको राधिका का टोटल स्कोर दिया गया है। सो टोटल स्कोर ऑफ राधिका is what, 20, okay, and she has attempted 12 correct answers, okay. So number of correct answers is 12, okay. उसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए हैं, 12 दिए हैं, ओके। तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर, 1 मार्क 1 करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स, तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए कितना हो जाएगा, +3 × 12 means 36, 12 3 are 36, okay. So the marks given for correct answers of Radhika is 36, but her total score is 20, means करेक्ट आंसर कितने 30 मार्क्स दे रहे हैं, 36 मार्क्स दे रहे हैं, और जो उसका टोटल स्कोर बन रहा है वो क्या है, 20 बन रहा है। इसका मतलब उसने कुछ रॉन्ग आंसर्स किए हैं तभी उसमें से माइनस हुआ है, ओके, तभी उसमें से माइनस हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टोटल स्कोर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके, दिस इज स्टैंड फॉर टोटल स्कोर ऑफ राधिका
will equal to marks for correct answer, okay, marks for correct answers plus marks for incorrect answers, okay. IA is for incorrect answer and CA for correct answer, okay. Now see, put the values which we have given here. Total score of Radhika is 20, okay. Marks for correct answers, this 36, okay, but we don't know the marks for incorrect answers, okay. So we will write it as it is, marks for incorrect answers. Now see, 20 here 36, अगर आप 36 को यहाँ पर इस साइड लाएंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स विल बी 20, यहाँ पर ये क्या है, प्लस का है, इक्वल के इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब 20 माइनस 36, दिस विल बी प्लस माइनस माइनस, तो 36 माइनस 20 इज व्हाट, 16, ओके, एंड द साइन विल गो विद ग्रेटर नंबर, दैट इज 36 हियर, सो माइनस 16, ओके। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं राधिका को, -16, ओके। बट हमें तो ये निकालना है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए हैं, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी हैज़ डन इनकरेक्ट, ओके। सो सी हियर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर विल बी -16। देखिए यहाँ पर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, -2, ओके। तो -2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि जो टोटल इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज़ हियर -16, इट मीन्स 2 into 8, -2 into 8 विल बी -16, ओके। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है कि सपोज यहाँ पर क्या दे रखा है, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स यू हैव गिवन एंड यू ऑल्सो नो द मार्क्स गिवन फॉर one incorrect answer, so here you have to divide the total by the marks given for one incorrect answer, that is -2, okay. So here total marks for incorrect answer, that is -16, so we will divide it by the marks given for one incorrect answer, that is -2 here, okay. So minus sign will be positive here and 2 8 जा 16, ओके। तो क्या आ रहा है आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स राधिका हैज़ अटेम्प्टेड इज 8, ओके। कितना, 8 उसने इनकरेक्ट आंसर्स मीन्स इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ओके। कुछ भी आपको रटना नहीं है, सब कुछ अंडरस्टैंड करते हुए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। बस आपको एक बार अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, एक क्वेज हो रही है जिसमें क्या है, एक वन करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3, एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर एक राधिका गर्ल है जिसने कितना स्कोर किया है, 20 मार्क्स ओवरऑल स्कोर किए हैं, ओके। एंड ऑल्सो वी हैव गिवन हियर द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स सी हैज़ अटेम्प्टेड, दैट इज़ 12, ओके। सो वन करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, 36। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर्स का जो स्कोर है दैट इज़ 36, बट ओवरऑल स्कोर क्या है, 20, मीन्स ओवरऑल जब 20 है इसका मतलब 36 में से कुछ माइनस हो रहा होगा तभी 20 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उसने, और माइनस कब हो रहा है, जब उसने कुछ इनकरेक्ट आंसर्स अटैम्प्ट किए, तो वही कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटैम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि टोटल स्कोर जब आपको माइनस मार्किंग हो रही हो, ठीक है, मीन्स आपको रॉन्ग करने पर भी मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, और कैसे दिए जा रहे हैं, माइनस में दिए जा रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए टोटल स्कोर
किससे मिलकर बनता है? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स, ठीक है, प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो ठीक है, राधिका का यहाँ पर मार्क्स कितना बन रहा है फॉर करेक्ट आंसर 36 एंड टोटल स्कोर सी हैज़ is 20. Okay, and marks for incorrect answer that we don't know, so we have to calculate it. Okay, now see, 36 is adding here on the left hand side of equal, this will be minus, so we have done 20 minus 36. Okay, so here we are left with minus 16. Okay, so minus 16 is the marks फॉर इनकरेक्ट आंसर। ये तो हो गया इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -16। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन सी हैज़ अटेम्प्टेड। ओके, मीन्स टोटल मार्क्स हमें पता चल गया है इनकरेक्ट के लिए। अब हमें पता है कि वन इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, -2। ओके, तो हम क्या करेंगे, वन इनकरेक्ट आंसर का जो मार्क्स है उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, सो आंसर आपका क्या आ रहा है, 8। सो राधिका हैज़ अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ओके, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम ही है, फर्स्ट पार्ट जैसा ही। ठीक है, यहाँ पर एक गर्ल है मोहिनी, उसने टोटल स्कोर कितना किया है, -5 मार्क्स। ओके, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, माइनस में ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर्स ज़्यादा किए हैं। राइट, नाउ सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। हेयर यू आर गिवन द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर सी हैज़ अटेम्प्टेड, दैट इज 7। सो हाउ मैनी क्वेश्चन सी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो इनकरेक्ट आंसर्स का हमें नंबर बताना है। सो एज वी हैव डन इन फर्स्ट पार्ट, सिमिलरली वी हैव टू डू हियर। ओके, सो टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी इज what, -5. Okay, and she has got 7 correct answers. So marks given, marks obtained for 7 correct answers. वन करेक्ट आंसर्स के लिए कितने, +3 मार्क्स मिल रहे हैं। देन फॉर 7 करेक्ट आंसर, सो वी विल मल्टीप्लाई 8 by 7. ओके, सो 7 3s is what, 21. Okay, now see here, total score is equals to marks for correct answer plus marks for incorrect answers. Okay, so see here, total score is -5 and marks for correct answer, that is 21 here. Okay, plus marks for incorrect answer, that we don't know, so write it as it is, marks for incorrect answers. Okay, now see, we have to remove this 21 because we have to find this term, marks for incorrect answers. Okay, so we will write it as marks for incorrect answers will be -5. When you will transpose this 21, okay, on the other side of equal, so it will be -21. Okay, both are negative, so you will add the numbers. So 21 plus 5 is 26, and since both are negative, so you have to put negative sign. So -26 marks for incorrect answer the Moini has got. Okay, now here we have to find out the number of incorrect answers she has attempted. So
हम क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट आंसर्स का टोटल है उसको किससे, 1 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2, उससे डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट answers Mohini has attempted will be -26 divide by -2. ओके, इनकरेक्ट टोटल क्या था इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स का, -26। तो इस टोटल को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जितने मार्क्स मिल रहे हैं, मीन्स -2 से। सी हियर बोथ आर नेगेटिव, सो आंसर विल बी पॉजिटिव, एंड 26 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 13 टाइम्स, सो इट विल बी 13. Okay, so number of questions Mohini has attempted incorrect, that is 13. Okay, so this way you calculate this type of question. Okay, now the question number 7 is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? Okay, so let's start it. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. Means elevator descent means falling downwards. Okay, नीचे की तरफ fall करना. Okay, तो किस रेट पर वो fall कर रहा है, in downward direction, means 1 मिनट में 6 मीटर. Okay, 1 मिनट में 6 मीटर. Suppose ground level यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल. ओके, एंड अबव द ग्राउंड लेवल 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट द एलिवेटर स्टार्ट्स डेसेंट. ओके, मीन्स गोइंग डाउनवर्ड्स. ओके, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम हेयर द एलिवेटर इज डिसेंडिंग, -350 मीटर. ओके, सो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एलिवेटर ने यहाँ से डेसेंट स्टार्ट किया था और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 350 मीटर. ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टू रीच दिस पॉइंट, मीन्स आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस -350 मीटर. ओके, सो सी हियर, दिस इज द इनिशियल हाइट. ओके, दैट इज अबव द ग्राउंड लेवल. सो इनिशियल height will be above the ground level, so we will take positive sign, 10 meter. Okay, now the elevator starts from this point above the ground level, 10 meter above, so the elevator start from this one and covering the distance -350 meter, means the depth, if we height take in downward direction, that will come out as depth. So final depth is -350 मीटर. ओके, अब देखिए ये अबव 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से ग्राउंड लेवल से ये डिस्टेंस नहीं दे रखी है आपको. कहाँ से दे रखी है, इस अबव 10 मीटर मीन्स इस 10 मीटर से ये डिस्टेंस दे रखी है. इसका मतलब ये 10 मीटर आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो क्या इस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम पीरियड पूछा गया है कि कितना टाइम लेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 इसमें से माइनस करना पड़ेगा. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by elevator will be final depth minus this initial height minus initial height. Okay, so final depth is -350 and minus initial height is
10 meter. Okay, so it will be 350, both are negative, so you have to add them. So 350 plus 10, 360, and the sign will be negative. It means to elevator minus 360 meter distance the elevator have to travel. Okay, time taken to travel 6 meter per minute and the elevator is going downwards, so we have to take the distance as negative, means minus 6 meter. So time taken to travel minus 6 meter is 1 minute. Okay, so time taken to travel minus 360 meter will be minus 360 divided by minus 6. Okay, so minus minus will cancel out and 6 6 are 36 and this 0 means 60 minute. Okay, or you can write 60 minute to 1 hour. Okay, so time taken to travel the distance minus 350 meter, that is starting from 10 meter above the ground level by the elevator is 1 hour or 60 minutes. ओके, तो क्या किया क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था हमें कि एक एलिवेटर है वो डाउनवर्ड साइड में ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड क्या है कि 1 मिनट में 6 मीटर ट्रैवल कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। इसका मतलब हमें वो डिस्टेंस क्या है, माइनस में लेनी है, मीन्स माइनस 6 मीटर इन मिनट। ओके, अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर वो एलिवेटर 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल डिसेंट करना स्टार्ट करता है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, माइनस 350 मीटर, तो ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड हमें निकालना है और टाइम पीरियड के लिए हमें क्या डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर ये ग्राउंड लेवल से ट्रैवल कर रहा होता तो हम डायरेक्टली क्या करते, माइनस 350 को माइनस 6 से डिवाइड कर देते, लेकिन ये ग्राउंड लेवल से डिसेंड करना स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये क्या है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव यहाँ से करना है। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो हमें माइनस करनी पड़ेगी माइनस 350 में से। ठीक है, क्योंकि हमें अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है ग्राउंड लेवल से, दैट इज़ 0 हेयर। अगर 0 से स्टार्ट होता, मतलब 0 से ये डिस्टेंस आपको दे रखा होता तो आपको कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर 0 से स्टार्ट ना होकर कितना 10 मीटर अबव तो 0 से स्टार्ट करना है। इसका मतलब इस 10 को आपको माइनस 350 में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस दैट द एलिवेटर हैज़ टू ट्रैवल दैट विल बी माइनस 360 मीटर। ओके, सो माइनस 6 मीटर he is traveling in 1 minute, so minus 360 meter the elevator will travel, that will be minus 360 divided by minus 6, so the answer is 60 minutes. Okay, so this was all about for today's session in which we have discussed the question number 4 to question number 7. Okay, so if you have any query, any doubt related to today's session, please mention in the comment box. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss the next chapter, that is chapter number 2, fraction and decimals. Okay, so till then keep watching my channel. Thank you.